پہلے جو وحی آئی، سب سے پہلے جو حکم آیا، سب سے پہلا جو فرمان آیا، اللہ تعالیٰ نے جو میرے نبی کو سب سے پہلا سبق دیا، اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو سب سے پہلی بات بتانی چاہیے، اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو سب سے پہلی بات بتانا چاہتا ہے، خدا کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ تو پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی، اقرأ بسم ربک الذی، اس رب کے نام سے شروع کر پڑھ، ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس رب نے تجھے پیدا کیا۔ اے نوجوانوں، اے بچوں، میری بات کو غور سے سننا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم اگر امت محمدیہ کو دیا جاتا ہے، اگر ہمیں اور آپ کو دیا جاتا ہے، اگر ہمیں آپ کو بتانا چاہتا ہے خدا کہ سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے، تو خدا فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے لوگوں، آپ کا سب سے پہلا کام علم حاصل کرنا ہے، پڑھنا ہے، اقرأ بسم ربک الخلق، ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ یہی تک نہیں، آگے اللہ تعالیٰ اور ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من علق، خلق الانسان، جس نے پیدا کیا انسان کو من علق، ایک خون کے گٹھڑی سے پیدا کیا۔ ہماری اور آپ کی اگر شناخت پہچاننا چاہے، اگر کوئی انسان یہ جاننا چاہے انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی سچائی کیا ہے، انسان کس چیز سے بنا، تو اللہ فرماتا ہے خلق الانسان من علق، کہ اس رب کی بڑائی بیان کر، اس رب کے نام سے پڑھ جس رب نے انسان کو پیدا کیا من علق، اور یہ ہر انسان کی سچائی ہے، ہر انسان کی حقیقت ہے کہ جب انسان کی جو اصل شروعات ہوتی ہے نطفے سے ہوتی ہے، نطفے سے خون کی شکل کو اختیار کرتا ہے، وہ خون ایک گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس میں ہڈی نما ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو روح ڈالتا ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الخلق، اے لوگوں، میرے نوجوانوں بچوں سنو، یاد رکھو میری باتوں کو، نوٹ کر لو کہ خدا کا سب سے پہلا اگر حکم ہے تو پڑھنا ہے۔ اب میں پڑھنا کس چیز سے ہے، اللہ تعالیٰ کے اور ارشاد فرماتا ہے اقرأ وربک الذی علم بالقلم، کہ اقرأ وربک الذی، پڑھ، وربک الذی علم بالقلم، اس چیز کو پڑھ جو تمہارے رب نے علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے تمہیں سکھایا ہے۔ اے لوگوں، یاد رکھنا، آج آپ کو قلم سے لکھنا آتا ہے، آپ کو پڑھنا آتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن خدا نے یہ نشاندہی کر دی کہ تمہارے پڑھنے کے لیے کتاب عطا کیا قرآن پاک، تمہیں لکھنے کے لیے قلم عطا کیا، تو ہمیں اور آپ کو، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو سب سے زیادہ جو غور دینی چاہیے، سب سے زیادہ جو جس پر توجہ دینی چاہیے، وہ بڑی چیز علم ہے، وہ بڑی چیز کتاب ہے۔ ہمیں ہمارا ذہن کتابوں پر ہونی چاہیے۔ میری بچوں، اب یاد رکھو، میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا ذہن کیا ہونا چاہیے، کتابوں پر ہونا چاہیے۔ اس غوث پاک کو یاد کرو، جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلنے کا انداز کیا ہوتا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ہیں اور بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بچے ان کے ساتھ جواب دیتے ہیں محمد رسول اللہ۔ اے نوجوانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بچوں کہ آج ہم آپ فری فائر کھیلتے ہو یا پب جی کھیلتے ہو، فیس بک واٹس ایپ چلاتے ہو، اب آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہماری دنیا یہی ہے، ہم موبائل چلانا سیکھ گئے ہیں تو ہم بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن بچوں اب یاد رکھنا کہ آپ کی پہچان کتاب سے ہونی چاہیے، آپ کی شناخت قوم سے ہونی چاہیے۔ آپ کو اگر دنیا جانے تو اس بات سے جانے یہ بچہ کتنا پڑھا لکھا ہے، یہ نوجوان کو کیا آتا ہے۔ اس نوجوان کو اگر پوچھا جائے تو میرے جواب دے سکتا ہے یا نہیں، یہ نوجوان پڑھنا جانتا ہے یا نہیں، اگر کچھ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ سکتا ہے یا نہیں، اگر ضرورت پڑے اگر کتابت کی کہیں لکھنے کی تو وہ لکھ سکتا ہے کہ نہیں۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ پب جی کھیلنا جانتے ہو یا نہیں، آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ فری فائر کھیلنا جانتے ہو یا نہیں، آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فیس بک چلانے جانتے ہو یا نہیں، آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ واٹس ایپ کا اکاؤنٹ بنانا آتا ہے کہ نہیں، آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو MIT بنانا آتا ہے کہ یہ نہیں، آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آج کتنا اسکور بنایا گیا ہے، آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس نے کتنی وکٹ لی ہے، کس نے کتنا رن بنایا ہے۔ اگر پوچھا جائے گا تو آپ نے کتنا پڑھا ہے، آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے، آپ نے
सवाल होंगे। इसलिए नौजवानों बच्चों मेरी बात को गौर से नोट कर लो कि आपके लिए जो असल चीज है वो ये है, आप ये समझ सकते हो, आप ये कर सकते हो कि जमाना डेवलप कर दिया, जमाने ने तरक्की कर ली। आज का जो जमाना है मॉडर्न जमाना है, लिहाजा हमें मोबाइलों को भी देखना जरूरी हो गया है, हमें उसकी भी जानकारी होनी जरूरी है। ये मैं मान सकता हूँ आपकी बातें, आपके लिए खेल की जरूरत है, लेकिन बुजुर्गों मोबाइलों में अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करो, बल्कि अल्लाह ताला ने जो सबसे पहली तालीम दी है ये बड़ा अपने रब के नाम से ये लोगों हमें आपको चाहिए कि सबसे पहला हमारा काम इल्म होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद किसी और बयान दे। आइए मैं आपको बताऊं जिस कौल से पाक का ये मदीना चल रहा है, उनकी एक बात बताऊं, इल्म ही थी कि जिन्होंने ये मकाम फरमाया था। और से पास से जब पूछा गया कि आप इतने बड़े गौस कैसे हो गए? आज हमारे माँ बाप अगर गुजर जाते हैं, वालिदैन दादा दादी गुजर जाते हैं, तो एक पीढ़ी तक उनका नाम याद रहता है। अगर किसी से पूछ दिया जाए कि आपका परदादा का नाम कौन है, आपके परदादा का नाम क्या है, तो शायद यहाँ एक दो का कोई बता सकेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि 99% फेल हो जाएंगे कि जो अपने परदादा का नाम याद रखते होंगे। उनके दादा का नाम तो हर कोई नहीं बता पाएंगे, लेकिन बुजुर्गों से बात का नाम सबको याद है। क्यों याद है? बहुत से बात से हमारा जाहिरी तौर पर कोई रिश्ता नहीं, बहुत से बात हमारे रिश्ते में कोई नहीं लगते थे, साल हर साल पहले गुजर गए हैं, लेकिन औसे पाक को आप याद करते हो, औसे पाक के न्यास भी करते हो, औसे पाक हमारे मुल्क के नहीं थे, औसे पाक हमारे शहर के नहीं थे, हमारे जिले के नहीं थे, हमारे सूबे के नहीं थे, आज औसे पाक को आप याद करते हो, तो आपको बताना पड़ेगा। जब औसे पाक से पूछा गया आपको नहीं, आपको अल्लाह ताला ने ये मर्तबा कैसे अता किया, आप इस मर्तबे पर कैसे फाइज हो गए? आप अगर चाहते हो तो मुर्दा को भी दुनिया कर देते हो, आपकी अगर वो आपकी रूहानी कर्म हो जाती है तो बीमार की शिफायात हो जाती है, आप अगर चाह लेते हो तो आप बीमारों को भी अच्छा कर देते हो। आपको ये मकाम कैसे मिला? और सिफात रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि मैंने इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करता रहा, इल्म हासिल करता रहा, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मुझे मकाम खुद अता कर दिया। सुभान अल्लाह। बुजुर्ग इल्म के जरिए से हजरत गौस पाक को अल्लाह ताला ने वो मकाम खुद अता फरमा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ नौजवानों बच्चों कि आपकी सबसे पहला काम इल्म होना चाहिए, इनकी शनाख्त होनी चाहिए। लेकिन गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला इनके बारगाह में उस वक्त के 100 जैद आलिम, बड़े बड़े आलिम मुफ्तियां ने कराम आते हैं और वो ये सोच कराते हैं। आज तो हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला जिनके इल्म का शोहरत चारों जानिब है, उनसे आज पूछा जाएगा और उनसे ऐसे ऐसे सवाल किए जाएंगे कि वो जो अल्लाह जवाब हो जाएंगे। 100 बड़े बड़े आलिम उस वक्त के आते हैं, मुफ्तियां ने कराम आते हैं, हर एक अपना अलग अलग सवाल बना कर आता है और अपने एतबार से वो कठिन और मुश्किल सवाल बना कर आता है। आज हजरत अब्दुल कादिर से पूछा जाएगा, 100 लोग आएंगे, महफिल में बैठ गए हैं और ये सोच रहे कि हम सवाल करेंगे। इसी दरमियान हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अपने चेहरे को झुकाते हैं, अपने सर को झुकाते हैं और चेहरे को झुकाते हुए झुकाते हैं। कुछ देर के बाद हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला के सीने से एक नूर निकलता है, वो नूर निकलता है। अब जितने लोग सवाल करने के लिए आए थे मुफ्तियां ने कहा, सारे लोग ताज्जुब में पड़ जाते हैं, हैरत ज़दा हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमें मामला समझ में नहीं आ रहा है। उनसे पूछा जाता है कि आप परेशान क्यों हो? वो कहते हैं कि मेरे पास जो भी इल्म था, मैंने जो कुछ आज तक इल्म हासिल किया था, मैं जो कुछ आज पूछने के लिए आया था, जो सवालात करने के लिए आया था, सब कुछ हमारे ज़हन से निकल गया। हम ऐसे मालूम होते हैं कि मेरे पास कुछ इल्म नहीं रहा। मामला क्या है कि सारे लोग परेशान हो जाते हैं। 100 लोग हैं, 1-2 लोग नहीं, 100 लोग हैं, 100 वक्त के बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम जो आलिम उलमा है, सारे लोगों की ज़हन से बात निकल जाती है। अब गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला एक एक को बुलाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं और उनका सवाल भी बताते हैं कि आपका ये सवाल था, उसका जवाब ये है, और वो उन्हें एक एक करके डिसाइड करते जाते हैं। हत्ता के मामला ये होता है कि 100 लोग आते हैं और हर एक का सवाल नहीं पूछते, बल्कि गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला उनका सवाल भी बताते हैं, उनका जवाब भी बताते हैं। रावी कहते हैं उनसे पूछा जाता है जो 100 लोग आए थे, आखिर आप लोग इतने परेशान क्यों थे, इतने परेशान क्यों थे और फिर बाद में मुतमईन कैसे हो गए? वो सारे लोग कहते थे कि मामला ये है कि जब हम सारे लोग आए थे, हम उतने बड़े बड़े उलमा थे, मुफ्ती थे, लेकिन जब हम लोग आए और से पाक रज़ी अल्लाह तआला के सीने से जब एक नूर निकला, हमारा पूरा इल्म हमसे गायब हो गया। और जब गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने सीने से लगाया, मेरा इल्म सारा वापस आ गया और गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने मेरा सवाल भी बताया और वो जवाब अता फरमाया। हमें खुद मालूम नहीं था।
बुजुर्ग वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में इसलिए आए थे कि गौसे पाक से सवाल किया जाएगा, उन्हें लाजवाब कर दिया जाएगा, इनसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे सवाल के जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब करम हुआ तो उनके सवाल भी बताए, उनके जवाब भी बताए। बुजुर्ग कहने का मतलब ये है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म था कि उन्हें सौ लोग उन्हें परेशान करना चाहते थे, लेकिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म ने उन सारे लोगों को जवाब कर दिया। एक और बात मैं बताऊं, एक आबिद कहते हैं इबादत करने वाले को, एक आलिम कामल और एक आलिम कामल। मैं ये बात बताऊं कि मामला ये कि हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में शैतान आपस में एक मशवरा करता है, शैतान आपस में एक मशवरा करता है और मशवरा ये करता है कि हम आखिर पढ़ने वाले को वो आपस में ये मशवरा करते हैं कि हम एक इबादत करने वाले को रोके, लेकिन शैतान से ज्यादा खुश ये होता है कि अगर कोई पढ़ने वाले को रोक दिया जाए। मामला है कि शैतान का एक शैतान की एक मजलिस लगी हुई है, उस शैतान की मजलिस में जो शैतान का सरदार होता है वो सारे लोगों से पूछता है, बताओ आज आपने क्या किया, आज आपने क्या किया। हम और आप जानते हैं कि शैतान का काम होता है अच्छी राह से भटकाना, अच्छे काम से दूसरे गलत राह बताना, ये शैतान का काम होता है। अलग मामला ये है शैतान रास्ते से भटकाता है। तो कहने का मतलब ये कि शैतान का सरदार पूछ रहा है हमें ये पता है कि आज आपने काम क्या किया। सारे लोग अपना अपना काम बताते हैं, एक कहता है कि हमने दो लोगों के दरमियान लड़ाई करा दी, एक कहता है कि हम दो लोगों के दरमियान जो दोस्ती थी उनकी दोस्ती खत्म कर दिया, एक ये कहता है कि दो ऐसे लोग जिनके दरमियान अच्छी रिश्तेदारी थी, अच्छी मोहब्बत थी, उनकी मोहब्बत को मैंने खत्म कर दिया, उनके रिश्ते को मैंने तोड़वा दिया। अलग मामला ये है सारे लोग एक एक जवाब देते थे, लेकिन उन्हीं में से एक शख्स होता है, एक बुरा शैतान होता है, वो खड़ा होता है और वो ये कहता है कि सरदार आज हमने जो काम किया है वो काम ये किया है, वो हमने काम ये किया है। एक बच्चा मदरसे में जा रहा था, वो पढ़ने के लिए जा रहा था, इल्म हासिल करने के लिए जा रहा था, मैंने आज उसे फुसलाकर उसे जाने से रोक दिया और उसे मेरे मदरसे में भी जाने दिया। शैतान खुश होता है, शैतान का सरदार खुश होता है, उसे शाबाशी देता है। जब शाबाशी मिलती है जो और शैतान होते हैं उन्होंने और काम किया था, वो कहते हैं जी मामला है हमने इतना बड़ा काम किया, पूरे मोहल्ले के अंदर लड़ाई लगा दी, हमें शाबाशी नहीं मिली, हमने रिश्ता तोड़वा दिया, हमें शाबाशी नहीं मिली, इसलिए छोटे से मासूम बच्चे को पढ़ने से रुकवा दिया तो अल्लाह तो इसे इतनी शाबाशी मिल रही है, ये कितना बड़ा काम है। शैतान का सरदार कहता है अगर तुम्हें इस बात का यकीन ना हो, अगर इस बात को समझना हो तो जाओ फलाने जगह पर एक आबिद है, एक इबादत करने वाला है, जिसके पास इल्म तो नहीं अलबत्ता वो इबादत गुजार जरूर है, खुदा की बंदगी जरूर करता है, खुदा की इबादत करता है, वो जाओ अलगरज जाता है, शैतान जाता है रात के अंदर, रात के अंधेरे में वो इबादत गुजार रहा है, इबादत में लगा हुआ है, नमाजों में मशगूल है। इसी दरमियान शैतान आवाज देता है ए आबिद, ए इबादत करने वाले, इबादत गुजार, आपकी इबादत कबूल हो गई है, अल्लाह ताला ने आपकी इबादत को कबूल कर लिया है, अब आपको नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनना था, वो इबादत गुजार खुश हो जाता है, खुश हो जाता है, इबादत करना छोड़ देता है। अब वो शैतान जो तो सिर्फ उसके इम्तिहान के लिए गया था, वो आता है शैतान के अपने सरदार के पास और सारे मामला को सुनाता है। वो शैतान का सरदार कहता है ठीक है आपने एक आजमा लिया, अब दूसरी रात हजरत गौसे पाक हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में चले जाओ। वो शैतान आता है गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में आता है और आकर वही जुमला कहता है या गौस अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह ताला ने आपकी इबादत को कबूल कर लिया है, आप बड़े इबादत गुज़ार हैं, अल्लाह ताला ने आपकी इबादत को कबूल कर लिया है, अब आपको इबादत की कोई जरूरत नहीं है, अब आपको इबादत की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनना था हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला का जुमला होता है शैतान मरदूद महसूस होता है, मेरी इबादत की जरूरत खत्म हो गई, ये तुम्हें कैसे मालूम है तू शैतान मरदूद है, मुझे तू भटकाना चाहता है, तू मुझे भटकाना चाहता है, लिहाजा ये कहता है। अब शैतान अपना दूसरा हरबा इस्तेमाल करता है, कहता है या अब्दुल कादिर जिलानी यकीनन आपके इल्म ने आपको बचा लिया, या गौस आपके इल्म ने
आपको आज भटकने से बचा लिया, वरना मेरे कितने कितने इबादत गुजारों को जिनके पास इल्म नहीं था मैंने उसे रास्ते से भटका दिया, इबादत को छुड़वा दिया। ये गौस आपके इल्म ने आपको बचा लिया। हजरत गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब ये जुमला सुनते हैं गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, शैतान मर्दूद अब भी तू मुझे रास्ते से भटकाना चाहता है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मुझे मेरे अल्लाह ने बता दिया है। सुभान अल्लाह। हजरत गौस पाक का ये जुमला सुनने के बाद अब जब ये शैतान सरदार के पास जाते हैं, कहते तुम्हें मामला समझ में आ गया, एक इबादत गुजार जिसके पास इल्म ना हो और एक ऐसा इबादत गुजार जिसके पास इल्म हो, दोनों में क्या फर्क होता है। अलगरज मामला ये है, बच्चों में आपको समझाना ये चाहता हूँ कि इल्म आपके लिए कितना जरूरी है। इल्म आपको दुनिया में लोगों के सामने पहचान दिलाती है, इल्म आखिरत में आपको मकाम को मकाम अता फरमाएगा, जो मकाम आपको बगैर इल्म के हासिल नहीं हो सकता। इसलिए मेरे बच्चों आपको चाहिए कि आप इल्म पर जोर दो। मैं आपको एक और बात बताऊं, हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में बादशाह वक्त है, इसने एक कसम खाई कि मैं आज एक ऐसी इबादत करूंगा जो इबादत उस वक्त में पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा होगा। एक ऐसी इबादत करूंगा उस इबादत को पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा होगा। मैं ऐसी इबादत करना चाहता हूँ, और अगर मैं ना कर सका, ऐसी इबादत ना कर सका जो इबादत दुनिया में कहीं ना होती हो, तो मेरी बीवी को तलाक। बुजुर्गों मेरी बात को बड़ी गौर से सुनना। एक बादशाह कहता है कि अगर मैं कोई ऐसी इबादत ना कर सकूं जो इबादत सिर्फ मैं कर रहा हूं, मेरे सिवा पूरी दुनिया में वो इबादत कोई नहीं कर रहा होगा, अगर ऐसा मैं ना कर सकूं तो मेरी बीवी को तलाक। अब ये जब मामला होता है, सुबह होती है, ये सवाल अब उलमा के दरमियान जाता है, मुफ्तियाने कराम के दरमियान जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अगर हम नमाज इंडिया में पढ़े तो दूसरी जगह में भी लोग नमाज पढ़ रहे होंगे, अगर कोई आजान दे तो आजान भी दूसरी जगह हो रही होगी, अगर कुरान की तिलावत करे तो कुरान की तिलावत भी कोई ना कोई दुनिया में जरूर कर रहा होगा। हम अगर माँ बाप की खिदमत करें तो माँ बाप की खिदमत भी कोई ना कोई कर रहा होगा। अगर कुछ भी नेकियों को उठा ले, लेकिन वो नेकी कहीं ना कहीं जरूर कोई ना कोई कर रहा होगा। लेकिन बादशाह ने ऐसी कसम खा ली है कि वो इबादत सिर्फ दुनिया में मैं ही कर रहा होगा, मेरे सिवा कोई भी नहीं कर रहा होगा। लिहाजा ये कसम कैसे पूरी की जाए? अगर वो ना करे तो उनकी बीवी को तलाक है, आखिर ये कैसे हो सकता है? अलगरज जब सारे मुफ्तियाने कराम दम तोड़ जाते हैं, सारे लोग लाजवाब हो जाते हैं, ये सवाल हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा जाता है, या अब्दुल कादिर जिलानी आप लोगों को तारीफ देते हैं, फतवे देते हैं, वाज़ नसीहत करते हैं, हदीस और कुरान बताते हैं, इस सवाल का जवाब क्यों देते? वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि बादशाह वक्त ने कसम खाई है कि अगर मैं एक ऐसी इबादत ना करूं जो इबादत सिर्फ मैं कर रहा हूं, मेरे सिवा कोई ना कर रहा हो, अगर मैं ऐसा ना कर सका तो मेरी बीवी को तलाक है, बादशाह की बीवी को भी बचाना है, बादशाह का वो कसम भी पूरा होना है। आगे ये कैसे हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जहां सवाल भी खुद खुद जवाब बन जाता है। हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहना भेजते हैं कि बादशाह वक्त है, इन्हें कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, इन्हें फौरन मक्का शरीफ भेज दो और कह दो बादशाह वक्त का हुक्म है कि कुछ देर के लिए सारे लोग जो एहराम जो तवाफ कर रहे हैं तवाफ करना छोड़ दें। बादशाह का हुक्म होगा यकीनन कोई भी छोड़ देगा, बादशाह का हुक्म कोई भी मान सकता है। आम लोग कहें तो नहीं मानेंगे, लेकिन बादशाह का हुक्म होगा तो जरूर मानेंगे। लिहाजा अब सारे लोग तवाफ करना छोड़ देते हैं, बादशाह के वक्त तवाफ कर रहा है। बुजुर्ग हमें ये बताएं कि तवाफ काबा के अलावा कहीं हो सकती है, तवाफ काबा के अलावा कहीं नहीं हो सकता है। हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये जवाब दिया, जिसके जवाब में सारे मुफ्तियाने कराम अश करने लगे, ताज्जुब में पड़ गए और उन्होंने कहा यकीनन इसका जवाब नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर नमाज पढ़ने की बात की जाती तो पूरी दुनिया में कहीं न कहीं लोग नमाज कुरान की तिलावत या कुछ भी इबादतें कर रहे होते हैं, लेकिन तवाफ सिर्फ काबे का किया जाता है। काबे के सिवा किसी का तवाफ नहीं किया जाता है, काबे के सिवा किसी का भी तवाफ करना एक मुसलमान के लिए हराम है। इसलिए बुजुर्गों काबे को तवाफ के लिए बनाया गया है, और काबा में जब सारे लोगों को दिया गया, एक बादशाह के वक्त से तवाफ कर रहा है, यकीनन बादशाह की कसम भी पूरी हो गई, उनकी बीवी पर तलाक होने से भी बच गया। अलगरज कहने का मतलब यह है बुजुर्गों कि इल्म
اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے علم کوئی بندہ حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے اسے دنیا اور آخرت میں سرفراز عطا فرماتا ہے. ہمیں آپ کو چاہیے کہ علم ضرور حاصل کریں. ایک اور آخری واقعہ میں آپ کو بتا دوں اور سے پاک یوں تو اگر میں چھیڑوں تو بہت سارے واقعات میرے ذہن میں خود بخود آ جاتے ہیں. اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرید کے گھر میں جاتے ہیں, ان کی عیادت کی جاتے ہیں. جو مریض تھا, جو بیمار تھا, اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. آج ہم آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پیر صاحب بیمار ہے تو ان کی عیادت کے لیے جائے, لیکن پیر صاحب مرید کی عیادت کے لیے کیسے جائیں گے؟ لیکن اللہ کے ولی ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتے مرید کے گھر جانا, وہ اپنے وہ یہ سمجھتے ہیں خدمت خلق ہے اور خدمت خلق کے واسطے وہ سنت رسول سمجھ کر ان کے گھر جاتے ہیں. الغرض ایک مریض کے یہاں جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کی عیادت کرتے ہیں. وہ مریض کی جب عیادت کر لیتے ہیں, جب چلنے لگتے واپس آنے لگتے ہیں, تو وہ گھر والا ایک شخص کہتا ہے کہ غوث پاک معاملہ کیا ہے کہ میرے گھر میں ایک کبوتری ہے, ایک کبوتری ہے جو 6 مہینے سے انڈے نہیں دے رہی ہے, اور ایک اور پرندہ جس کا نام قمری ہے جو 9 مہینے سے بولتا نہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کی نظر کرم ہو جائے. یا غوث میں نے سنا ہے کہ آپ سے جو فریاد کی جاتی ہے یقیناً آپ کے ذات سے وہ پوری ہوتی ہے. یا غوث آپ کچھ کرم فرمائے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کبوتری کے پاس جاتے ہیں اور کبوتری کے پاس جانے کے بعد کہتے ہیں ایک کبوتری اپنے مالک کو فائدہ پہنچا. اتنا کہنے کے بعد اس قمری پرندے کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں اے قمری پرندے, تو 9 مہینے سے بول نہیں رہا ہے, اپنے خالق کی تصویر بیان کر. اب دیکھنے والے بیان کرتے ہیں, وہ گھر والا بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد جب تک وہ کبوتری زندہ رہی اس وقت تک وہ انڈے دیتے رہی. وہ قمری جو 9 مہینے سے نہیں بول رہی تھی اس کے بعد اتنی میٹھی آواز میں بولنے لگی کہ پورے محلے کے لوگ اس قمری کی آواز کو سننے کے لیے لوگ آتے تھے. تو بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان عطا فرمائی تھی, بڑی کرامتیں ان کی ہیں, بڑے کمالات ان کے ہیں. ان کی ذات نرالی ہے, ان کی بات نرالی ہے, ان کا در نرالا ہے, ان کا گھر نرالا ہے, ان کی ہر چیز نرالی ہے. ہمیں آپ کو غوث پاک سے نسبت جوڑنی چاہیے, غوث پاک سے محبت کرنی چاہیے اور غوث پاک کے فرمان کو اپنانا چاہیے, غوث پاک کی تعلیم کو اپنانا چاہیے, غوث پاک کی محبت اپنے دل میں بساؤ. بزرگوں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہے کہ آپ خود تعلیم حاصل کرو, علم بعمل بنو, چاہے دینی تعلیم ہو, دنیاوی تعلیم ہو, ہر تعلیم سے آپ آشنا ہو. اللہ تعالیٰ